Hello student, in this lecture we are going to see the relationship between streamlines and velocity potential lines. So first of all, that your phi and your psi and phi, that is the streamline. This is your stream function, right? And this one is your velocity potential function, right? So this both things are what? Function of space x, y, z and time, right? And in our syllabus, that stream function we have seen, this is the function of what? X and y, means it is the function of, we have studied it for the 2D, two dimensional and time, right? So this thing we are going to study for steady state case, steady state condition. So what will happen, that psi is the function of x and y and your phi is the function of x, y, z, right? Okay. And for 2D, this is function of x, y for 2D. It is defined for 2D, right? So let's see. Psi, that is the function of x and y, right? So differential form of this stream function can be written as del psi upon del x and dx plus del psi of del y dy, right? We know that this thing can be replaced as what? V dx plus this thing can be replaced as minus of u, right? Dy. Okay. So we got this expression, right? Suppose flow is taking in this place, right? This is the flow. So we can define the streamline along a line, along a streamline. Suppose this is the flow. So I can define a stream function. Suppose this is the psi here, and this value is not going to change along this streamline. Okay. So I can rewrite the one thing, that along streamline this value is 0. Okay. So what we will get for a streamline, along a streamline v dx minus u dy is equal to 0. Furthermore, I can rewrite in terms of dy by dx is equal to what? V by u. Okay. So this relation comes for a streamline. तो एक लाइन का स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग जो इक्वेशन मिल रहा है, मतलब ये जो dy by dx है, ये क्या बताता है? स्लोप बताता है, ठीक है? तो स्लोप क्या मिल गया मुझे? What is the value of slope? That is the dy by dx is nothing but v by u. This whole thing is for what? Along streamline. तो ये स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग मिल गया मुझे स्लोप. अब मुझे क्या पता है? This is your potential function, right? This is also the function of x and y for 2D flow, right? तो डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मैं बोलूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओके. और इस चीज को मैं क्या बोलता हूं? माइनस यू प्लस इसको मैं क्या बोलता हूं? माइनस वी, राइट? अब जैसे कि लास्ट टाइम हमने क्या बोला था? स्ट्रीमलाइन के अलॉन्ग, मतलब यहां पे अगर आप वैल्यू देखेंगे, स्ट्रीम फंक्शन का कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या है? ये हो गया कांस्टेंट स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं. इसी प्रकार से फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल लाइन, सपोज करो कोई लाइन है लाइक दिस, सपोज करो ये लाइन है. अगर मैं इसमें बोलता हूं कि यहाँ पे वैल्यू फाई है, यहाँ पे भी वैल्यू फाई है,
तो मैंने क्या डिफाइन कर दिया कि एक लाइन है जिसमें हर एक पॉइंट पे फाई की वैल्यू, दैट इज द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली। मतलब मैं अगर इस लाइन के अलोंग मूव करता हूं, ठीक है, तो इस लाइन के अलोंग मूव करता हूं तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेरा पोटेंशियल फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट रहने वाला है इस लाइन के अलोंग, मतलब अलोंग कांस्टेंट potential line. I can rewrite one thing, what, that change in this function is 0। ठीक है, तो यहां से क्या पता चलता है आपको, स्लोप dy by dx क्या पता चलेगा भाई, यहां से देख लीजिए, इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, देन dy by dx क्या आ जाएगा आपका, दैट इज द नेगेटिव ऑफ व्हाट, u by v, राइट, माइनस u by v, दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, so this is the, you can say, slope, okay, slope for potential function। Here you can rewrite this thing, that the slope 2, right? So what will you get, slope, you can say 1 multiply by slope 2, that is minus 1, right? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये कोई लाइन ऐसे में खींच दिया, दिस इज, यू कैन से, साइज कांस्टेंट, तो अब देखो दोनों का स्लोप में क्या आ रहा है, ये किसका था, स्ट्रीम फंक्शन वाले का, और ये किसका आ रहा है, पोटेंशियल फंक्शन वाले, मतलब दोनों का स्लोप माइनस होने से मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। ठीक है, मतलब स्ट्रीम फंक्शन लाइन और पोटेंशियल लाइन क्या है, ऑर्थोगोनल है इच अदर। तो अगर ये मेरा स्ट्रीम फंक्शन वाली लाइन है, साई वन साई वन साई वन साई वन, सपोज साई टू साई टू साई टू, राइट, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर मेरा क्या आएगा, not accurate, let's draw a perpendicular line, right? तो इसके परपेंडिकुलर क्या आने वाला है, देख लीजिए, like this like this like this, okay, so this is your, you can say, psi 1 psi 1 psi 1, ठीक है, ये psi 2 लाइन, और सॉरी, दिस इज द phi 1 phi 1 phi 1 लाइन, phi 2 एंड phi 3 लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी आप इंटरसेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 90 डिग्री दिखेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, in the last lecture we have discussed that what is the physical significance of stream function, right? तो स्ट्रीम फंक्शन का जो सिग्निफिकेंट है वो क्या था, वो देखना था। तो भाई ये है कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड को जैसे साई 1 माइनस साई 2 करो, उसका मैग्नीट्यूड लो, तो इन दोनों डिफरेंस क्या बताता है भाई, क्या डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज द फ्लो रेट बिटवीन। तो यहां से भी आपको समझ आना चाहिए, ये देखिए, तो जब भी कुछ भी फ्लो चल रहा है, सपोज करो दिस इज द फ्लो इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, ठीक है, तो जो भी फ्लो होगा और उसके जो परपेंडिकुलर, देखो, तो जो फ्लो हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग हो रहा है, ठीक है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग आपका फ्लो हो रहा है, और अक्रॉस किसके हो रहा है, पोटेंशियल लाइन। अब देखिए पोटेंशियल फंक्शन में क्या है, जैसे phi 1 है phi 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ्लो अगर हो भी रहा है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, देयर इज समथिंग, दिस नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जहां पोटेंशियल फंक्शन का डिफरेंस होगा उसके ही अक्रॉस फ्लो पॉसिबल है। इसका मतलब ये है, इसके पोटेंशियल फंक्शन पोटेंशियल लाइन के अक्रॉस फ्लो पॉसिबल है, इसका मतलब यह है कि इसके अलोंग कोई भी फ्लो टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, मतलब फ्लो जो भी होगा वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग होगा और पोटेंशियल लाइन के अक्रॉस होगा, राइट। पोटेंशियल लाइन के अलोंग कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने कई सारी अगर लाइन ड्रॉ की है लाइक दिस, सपोज करो ये आपका क्या हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट, और यहाँ पे सपोज करो फ्लो हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, ये फ्लो हो रहा था, तो इसमें मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर दी। तो स्ट्रीम लाइन जो होती हैं वो बेसिकली फ्लो के डायरेक्शन को ही शो करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम लाइंस हैं।
ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, दिस इज, ये पूरी स्ट्रीम लाइन के अलोंग स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, लाइक दिस, लाइक दिस। इस वाले के अलोंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, फाई 2 लिख लीजिए, यहाँ कहीं भी जाइए फाई 2 ही रहेगा ऑल ओवर द, ठीक है। अब आपका इसके लिए देख लीजिए, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन बनेंगी, ठीक है, फ्लो नेट में जो परपेंडिकुलर लाइनें बन रही हैं वो क्या लाइनें बन रही हैं, दिस इज द पोटेंशियल लाइन्स, सॉरी दिस इज द 2, दिस द 3, राइट। तो ये जो आपका ग्रिड बन के आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। तो फ्लो नेट क्या है, आपका कोई भी फील्ड में कोई भी लिक्विड फ्लो हो रही है तो उसमें आप क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करते हैं और आपके इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उनका जो ग्रिड बन के आता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो नेट कहते हैं, ठीक है। अब इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्लो नेट के। अब जो फ्लो पैटर्न है कुछ देख लेते हैं क्या है फ्लो पैटर्न। अब जैसे फ्लो पैटर्न्स हैं इसमें मतलब ये देखना है कि जैसे फ्लो पैटर्न, जैसे कि अगर यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है आपका, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी स्पेस के साथ आगे आगे बढ़ने पे कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी का मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वाला। तो यूनिफॉर्म फ्लो में ये हो गया, तो इसके परपेंडिकुलरली आपकी कौन सी लाइनें आ जाएंगी, पोटेंशियल लाइंस, ठीक है। और देखिए और देखिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि कोई कन्वर्जिंग फ्लो चल रहा है, ठीक है, कन्वर्जिंग सॉरी सिंक लीजिए एग्जांपल में, सिंक फ्लो। तो सिंक के केस में क्या होता है, आपको क्या पता था सिंक के केस में कि भाई चारों तरफ से फ्लूइड आती हैं और एक पॉइंट की तरफ क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, राइट। तो इसको फ्लो पैटर्न में देखिए, जहां से पानी आपका आ रहा है या फिर लिक्विड आ रही है तो वो जिस अलोंग, अगर अलोंग द वेलोसिटी वी कैन डिफाइन व्हाट, स्ट्रीम फंक्शन, राइट। तो ये जो स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन हो जाएगा लाइक दिस 3, यू कैन डिफाइन मेनी नंबर ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, राइट, ठीक है। अब ये तो स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन कर दिया सिंक के लिए। अगर मैं बात करूं व्हाट, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर इस लाइन के इस लाइन के इस लाइन के, तो आपको क्या मिलता है, एक सर्कल जैसा मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे कई सारे कॉन्सेंट्रिक सेंटर सर्कल ले लीजिए, तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे आपके, दिस थिंग इज योर phi 1, suppose phi 2, phi 3, these are the equipotential line। तो पोटेंशियल का मतलब समझिए, जैसे कि आपका प्रेशर डिफरेंस होता है तो आप, या फिर एनर्जी डिफरेंस होती है तो पानी फ्लो होती है, उसी प्रकार से आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उसी कारण आपका जो भी लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सिंक के लिए आपको समझ आ गया कि फाई और साइन लाइंस कैसे डिफाइन हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से सोर्स के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी ये फ्लो का डायरेक्शन, और बाकी कुछ है नहीं, ठीक है।